right when it mattered, I could not score. Not able to secure admission in any college at the time when I gave my 12th. I was so heartbroken that खुद को फेलियर मान लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। और बहुत इंसल्टिंग फ़ील होता है, ऐसा लगता है भई अब तो मेरी पूरी लाइफ़ में एमबीए भी करूँगी तो वहाँ भी मेरे 12th के मार्क्स देखेंगे सब जगह, मेरे को तो कोई एडमिशन नहीं देगा, मेरी लाइफ़ अब खराब हो जाएगी। It does not happen that ways. Right now, after few years after my school, जो बच्चे टॉप किए थे स्कूल में, I am doing even better than even the school topper right now. I literally never expected that from myself. अगर कोई मुझे उस टाइम पे 12th के टाइम पे मुझे ये जाके बोले कि ऐसा होगा मेरे साथ, मैं तो कहती पागल है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे पता है इस टाइम आप हार्ट ब्रोकन है, आपको लग रहा है दुनिया खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। इस टाइम आपको कोई नहीं बोलेगा ऐसा, सब ये बोलेंगे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या नंबर है 60%, 50%, 70%, ये क्या नंबर है, इसमें कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम तो अब बस मतलब क्या ही होगा तुम्हारे साथ, ये तुमने तो नाक कटवा दी, और ये सब बातें लोग बोलेंगे, मुझे पता है। एंड इवन इफ नहीं बोलेंगे तो वो उनके एक्सप्रेशन से, उनके समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स या फैमिली या रिलेटिव्स बोलते नहीं है, पर वो उनके हाव भाव से दिख जाता है, आपको वो फील करवा देंगे कि यू आर नोबडी। But listen from somebody who's been there and who's come out of that place and proven to everybody. Even अब जो मेरे relatives हैं वो भी ये सोचते हैं कि भाई इसने तो लाइफ में मतलब अच्छा कर लिया। So I'm here to tell you today what happens few years after not scoring good after 12th exam, and that will extremely be helpful for you. करने में टाइम लगा देते हैं, पर हमें क्या काम करना है उसे फिगर आउट करने में टाइम ही नहीं देते, और इसी वजह से फिर 10-20 साल बाद लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने क्या कर लिया। तो ओके, क्या आपको लगता है कि आप करोगे, और मैं उसको रिव्यू करूंगी फ्रॉम एंड फ्रॉम एन एल्डर सिस्टर पर्सपेक्टिव। Board results were out. Congratulations to those who got good results, but this video is not for those who got good marks in 12th. This is for those who did not score as good as you thought that you would, or even though you did not even think that you'll score good, but there's this hope that you'll get maybe some good marks, but it got shattered after the results. I was that person a few years ago. I did not get good marks, even though I was a good student throughout my school life. But the right when it mattered, I did not score well. And it was life shattering at that moment. Firstly, I know right now everybody would be focusing on the toppers, those who got good results in boards and then later on good in JEE and NEET and whatnot. I know nobody focuses on those who get bad results, those who get marks lower than the expectations of the world, get sidelined as if they never were there in the first place, as if they don't exist. I understand, because I was at that very place. I did not get good marks in my 12th. I had science stream, but I know that this is applicable to everybody, like all the streams, because 12th class is very substantial. But at that time, let me tell you how I felt. I did not have the courage to tell my marks to my parents, because they expected good of me, and I was a bright student throughout my school life, but right when it mattered, the 12th boards results, right when it mattered, I could not score. And when you get low marks there, you can't even give JE, because I think at the time 80% was required for eligibility, so I could not even sit there. No DU colleges would give me admissions, so technically I was not able to secure admission in any college at the time when I gave my 12th. Actually, I was so heartbroken that I could not even realize what was happening around me. I didn't care कि मुझे कोई एडमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिकॉज मैं ऑलरेडी माई हार्ट वॉज ब्रोकन, राइट। तो अब मैंने खुद को फेलियर मान लिया था, मैंने सोच लिया था कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। और ऐसे ऐसे बच्चे जो मतलब जिनको सब सोचते थे ये तो कुछ नहीं करेंगे, और वो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया उन्होंने, और मेरे कुछ भी नंबर नहीं आए। ठीक है, बहुत इंसल्टिंग फील होता है, ऐसा लगता है भाई
अब तो मेरी पूरी लाइफ में एमबीए भी करूंगी तो वहाँ भी मेरे 12th के मार्क्स देखेंगे सब जगह, मेरे को तो कोई एडमिशन नहीं देगा, मेरी लाइफ अब खराब हो जाएगी. It does not happen that ways. Let me tell you that right now, after few years after my school, जो बच्चे टॉप किए थे स्कूल में, I am doing even better than even the school topper right now. I literally never expected that from myself. अगर कोई मुझे उस टाइम पे 12th के टाइम पे मुझे ये जाके बोले कि ऐसा होगा मेरे साथ, मैं तो कहती पागल है. इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे पता है इस टाइम आप हार्ट ब्रोकन है, आपको लग रहा है दुनिया खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है. आपके पास अभी भी टाइम है. आप कितने यार, 16 17 18 साल के हैं, राइट? दुनिया में आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ये आपका 12th रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा. मैं इसका एक एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मैंने खुद को देखा है. मुझे पता है ये इस टाइम आपको कोई नहीं बोलेगा ऐसा, सब ये बोलेंगे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या नंबर है, 60%, 50%, 70%, ये क्या नंबर है, इसमें कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम तो अब बस मतलब क्या ही होगा तुम्हारे साथ, ये तुमने तो नाक कटवा दी, और ये सब बातें लोग बोलेंगे, मुझे पता है. एंड इवन इफ नहीं बोलेंगे तो वो उनके एक्सप्रेशन से, उनके समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स या फैमिली या रिलेटिव्स बोलते नहीं है पर वो उनके हाव भाव से दिख जाता है, आपको वो फील करवा देंगे कि यू आर नोबडी. But listen from somebody who's been there and who's come out of that place and proven to everybody. Even अब जो मेरे relatives हैं वो भी ये सोचते हैं कि भाई इसने तो लाइफ में मतलब अच्छा कर लिया. वो मैं बताऊंगी ऐसा कुछ मैंने कोई चांद तारे नहीं तोड़ लिए, पर हाँ मैंने उतना खराब भी नहीं किया जितना मुझे मैंने सोचा था. लाइफ बहुत बेटर हुई है. तो इट्स जस्ट बाय दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपके 12th में चाहे आप फेल भी हो गए हैं, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो फेल हो गए थे, कंपार्टमेंट आइए कोई बात नहीं, आप अपनी मतलब आप अभी भी आप इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं जो इवन आपका स्कूल का टॉपर भी नहीं जितना होगा. आप, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी. आपके पास टाइम है. ये एक एग्जाम हो गया. वैसे भी द एजुकेशन सिस्टम, द वे इट इज डिजाइंड, इट्स डिजाइंड फॉर पीपल हु काइंड ऑफ क्रैम्स थिंग्स. रट्टा मारने वाले बच्चों को वो बढ़ाते हैं आगे. अगर आप सच में बहुत इंटेलिजेंट है तो देर आर हाई चांसेस कि आप अच्छा स्कूल में करेंगे ही नहीं, बिकॉज वो उस तरीके से डिजाइन ही नहीं है कि वो आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर पाए. वो रट्टा मारना टेस्ट कर रहा है और उसमें आप फेल हो भी जाते हैं तो क्या हुआ, लाइफ में रट्टा मारने की कोई एप्लीकेशन है ही नहीं. डू यू गेट मी? नाउ we have realized के results उतने नहीं अच्छे आए हैं, that's okay, and we have realized के it's okay, but what next? अब आगे हमें क्या करना है कि हम इससे ऊपर उठें और प्रूव एवरीबडी रॉन्ग. जिनको लगता है, पता है ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. अब मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरे नंबर 12th में बेकार आए ना, तो पहले मैं सबका मेरे पे फोकस था, लेकिन जब मेरे नंबर खराब आए 12th में तो काइंड ऑफ पीपल साइड लाइन यू और आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता. तो वो एक ब्लेसिंग है कि अब आप पे लोग ध्यान नहीं देंगे, उन्हें लगेगा ये तो कुछ भी नहीं कर सकता. और यही आपका टाइम है, यू हैव टू वर्क इन साइलेंस एंड नोबडी इज गोना लुक एट यू एंड दैट्स अ ब्लेसिंग. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर. हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर कोई एक पॉइंट है जो मुझे मेरे करियर में आगे लेके गया है, वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. आपकी इंग्लिश रिटन, वर्बल एंड द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू स्पीक इन in private as well as with a group of audience, that matters a lot, and this is the time to work on that, because I know in school nobody kind of focuses on your communication skills. The school curriculum is not designed that way, but you have to focus on that, and I will make a video on that as well. Subscribe to this channel and don't worry, I'm going to take you step by step that how you can make your career from here even when you're not good, you've not gotten good scores. कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको फोकस करना है. रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी. उसके बाद आपको अब बैठना है अपने साथ कि ठीक है स्कोर्स खराब, नेवर माइंड, पर मैं अपनी लाइफ से चाहता क्या हूँ, मैं नेक्स्ट 5 years में अपने आप को कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ. आप कहाँ देखते हो? अगर आपके अच्छे स्कोर आ जाते तो आप मे बी जेई कॉलेज में जाके इंजीनियर बन जाते, बट नाउ सिंस यू डिड नॉट स्कोर, यू हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाटएवर यू वांट, राइट? देन चूज. एक कॉपी पेन लो, उस पर एक जगह लिखो कि 5 years में मैं
मतलब अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, तो मैं क्या बनूंगा या बनूंगी? लिखो, ये टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन एंड यू नो रेट्रोस्पेक्ट करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का, कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, कि मेरा करियर क्या होगा, मैं क्या बनूं, क्योंकि अब आप कुछ भी बन सकते हैं, राइट? ये आपके करियर एक्चुअली अब स्टार्ट हो रहा है। स्कूल में तो हमें एक बंधन से बांध देते हैं कि ये बुक्स पढ़ो, ये मार्क्स लाओ, ये पेपर दो, बस हो गया। नाउ यू आर फ्री एंड विद द एज ऑफ टुडे, with the internet, with AI and everything, you are really having wings. You just need to learn to fly. Okay, सो कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने एक बता दिया, स्टार्ट आप वहां से करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना काम करना शुरू करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको काम करना है कि मुझे करना क्या है। क्या आपको इंजीनियरिंग करनी है? सीरियसली, अगर करनी है, ओके, राइट इट डाउन। आपको डॉक्टर बनना है, नीट करना है, राइट इट डाउन। या आपको राइटर बनना है, वो भी लिखो। या आपको मे बी कुछ और करियर, कुछ हटके बनना है, आपको सिंगिंग करनी है, वो लिखो। पहले हमें फिगर आउट करना है। लाइफ में क्या होता है ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम उस पर काम करने में टाइम लगा देते हैं, पर हमें क्या काम करना है उसे फिगर आउट करने में टाइम ही नहीं देते, और इसी वजह से फिर 10-20 साल बाद लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने क्या कर लिया। तो आपके पास ये टाइम है, अब आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो और फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है। कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि आप करोगे, और मैं उसको रिव्यू करूंगी from and from an elder sister perspective. Don't worry, I'm with you. I'm gonna make videos on communication skills and things that gonna help you in your career as well as in life. So don't forget to subscribe and like this video if you liked what I said. Bye.